start this fourth and the last session for today. Since morning, we have heard the word man-making education, and it's written here also several times. This word was coined by Swamiji himself, Swami Vivekananda. His central message was this: how to make man a true man. By the term man is included woman also, which means the human being. In one place, Swamiji says that most people are not even true men in any sense of the term. They're just like brutes, animals. Raising the brute into man and man into divine, that is man-making education. In this context, for today, we have the last session on the subject of Swami Vivekananda's man-making message to the youth. And for this, we have Revered Swami Nikaleshwaranji Maharaj, the head of our Ramakrishna Mission Center at Vadodara in Gujarat. A chemical engineer, he did his post-graduation in industrial engineering and worked as a management consultant before joining the Ramakrishna Order in 1976. Revered Swamiji, after serving for 11 years at Divyayan Krishi Vijnana Kendra, a center of the Ramakrishna Mission dedicated to rural and tribal development in Ranchi area, from 1989 to 2000, he also edited Sri Ramakrishna Jyot, the Gujarati monthly of the Ramakrishna Order, published from Sri Ramakrishna Ashrama, Rajkot. Swami Nikaleshwaranji headed the mission center at Porbandar and was instrumental in constructing 37 school buildings in 3 colonies in Porbandar district as part of the earthquake rehabilitation work that took place in Gujarat. At Porbandar Center, he started the Vivekananda Institute of Value Education and Culture, which was inaugurated by Dr. APJ Abdul Kalam, the President of India, in 2006. Revered Swami Nikaleshwaranji has been touring extensively, speaking on various aspects of Vedanta and its practical application in life. He has addressed many informed audiences in industrial houses, management and educational institutions. He has also conducted training programs on stress management, productivity through holistic management, management of mind, total personality development, happiness and peace in everyday life, and so on. Besides writing articles for several journals, he has also authored a few books such as Happiness and Peace in Everyday Life, which have been very well received. In 2004, he participated in the second international conference on disaster management at Coventry University in UK, besides visiting other countries such as South Africa, Mauritius, Germany, France, Netherlands, and Switzerland. We heartily welcome Swami Nikaleshwaranji Maharaj and request him to speak on the subject Swami Vivekananda's message to the youth. Very sensitive, even if you're at a distance, it will be. Om Namah Shri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swami Netapaharine. My very dear young friends, I am extremely happy to meet you in this afternoon. I didn't expect such a large number, so many brilliant faces, and I am told you are coming from various sections of the society, though you are from Pune University, and there is an overwhelming response. I am very
happy to meet you all. At the outset, I express my gratitude to Swami Bhaumananji Maharaj for giving me this opportunity to meet you all. Before I start, I would like to have a few questions. You have been listening to wonderful talks right from the morning. Inaugural session by the Vice Chancellor, and then again Swami Bodhmayananji, Dr. Rao, and then now the professor also did his marketing and put you all on the job. And so you had series of programs, and now you are saturated, isn't it? दोपहर को खाना खाया, अभी चाय पिया, पेट भर गया, अभी नहीं भरा, दिमाग तो भर गया ना खाली है? देखो खाली है तो मैं नहीं बोलूंगा, दिमाग यदि अभी तक सुबह से अभी तक यदि पढ़ा सुना और फिर भी खाली है, इसका मतलब खाली है। और बोलो कि भर गया तो भर गया, अभी सुना ना, ग्लास भरा हुआ है, देख के क्या करूंगा? दोनों तरफ से मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा खाली है। अच्छा, चलो बहुत अच्छा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। सेकेंड, नाउ शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? मला मराठी येत नाही। English, Hindi, Gujarati, Bengali, 4 choices, but I know Bengali, Gujarati won't go well. So English and Hindi, these are the 2 choices. So, no, this is democracy, so we will have voting. All those who want that I should speak in English, please raise your hand. Thank you. अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि मैं हिंदी में बोलूं? अरे दोनों समय हाथ उठाते हो भाई। Very difficult. They are at equal number. Anyway, you know, रामकृष्ण मिशन में बहुत सारी एक्टिविटीज है, पूना में है, बड़ौदा में भी है। There are so many activities. Now some people they come every day. संध्या आरती होती है, खंडन भाव बंधन यहाँ मंदिर में होता है, बहुत सुंदर आरती होती है, स्वामी विवेकानंद की खुद की बनाई हुई आरती है, खुद ने लिखी है। तो many people are there, they come every day, daily passenger. Some people come only once in a week for religious discourse. Some people come only once in 15 days. वो लाइब्रेरी में 15 दिन के बाद किताब नहीं बदलाने से फाइन लगता है, तो 15 दिन में एक बार लाइब्रेरी के लिए आते हैं। और कुछ लोग हैं केवल साल में 4 बार आते हैं। कब? जब आश्रम में खिचड़ी प्रसाद होता है। वो बंगाली खिचड़ी का प्रसाद बहुत फेमस है। तो रामकृष्ण देव की जन्मतिथि, माँ शारदा की जन्मतिथि, स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि और गुरु पूर्णिमा, ये प्रसाद के लिए, खिचड़ी प्रसाद के लिए आते हैं। तो आज तुम लोग को खिचड़ी प्रसाद खिलाऊंगा, ठीक है? पर खाने की खिचड़ी नहीं, लैंग्वेज खिचड़ी। ओके, लैंग्वेज खिचड़ी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है? ओके। दूसरा क्वेश्चन है कि यू आर ऑल यूथ एंड स्वामी विवेकानंद मैसेज टू द यूथ, दिस इज द मेन मैसेज। तो मेन मैसेज स्वामी विवेकानंद का था, यू ऑलरेडी नो, मालूम है ना सबको? देखो ऊपर में क्या लिखा है, दिस इज द मैसेज, this is the message that Swami Vivekananda gave when he returned from the western countries. आप सबको मालूम है स्वामी विवेकानंद का जीवन तो पढ़ा होगा, किस प्रकार से वे बड़े हुए, कॉलेज में प्रोफेसर ने पास उन्होंने जाना, श्री रामकृष्ण के पास, फिर रामकृष्ण के पास आए, फिर उन्होंने संन्यास लिया, सारे भारत का परिव्रजन किया। 1893 he went to Chicago Parliament Religions. On 11th September 1893 he delivered his historic speech at the World's Parliament Religions. That was also 9/11. And that message was not well received, so there was 9/11. World Tower was broken in 2001. Isn't it? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में कहा था 11 सितंबर 1893, 9/11, 108 साल पहले कहा था कि धर्म के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी के नाम पर नहीं बहा है। And I fervently pray and I fervently hope and pray that the bell that tolled this morning in the honor of this convention may be the death knell of all sorts of fanaticism, of all sorts of dogmatism, and of all sorts of persecution in the name of religion, whether with the pen or with the sword, and let there be peace and harmony.
मैं चाहता हूं कि आज जो मृत घंटनाद हुआ शिकागो धर्मसभा में, वो मृत्युनाद सिद्ध हो। किसके लिए? सभी प्रकार की धर्मांधता के लिए। धर्म के बीच के झगड़े को भूल जाओ। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करके सिद्ध करके दिखा दिया कि प्रत्येक धर्म एक ही महान सत्य तरफ ले जाता है, जो तो मौत तो पथ, जितने मत उतने पथ। यही बात स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण को नहीं कोट करते हुए, परंतु भारतीय धर्म आध्यात्मिकता को कोट करते हुए कहा, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। वी डू नॉट ओनली बिलीव, वी डू नॉट ओनली टॉलरेट ऑल रिलीजन्स, बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज इक्वली ट्रू। हम कभी धर्मों को केवल सहन नहीं करते हैं। सहन करना तो क्या होता है? ट्रेन में जा रहे हैं, वो लोकल पैसेंजर आगे, अरे भाई रिजर्व कंपार्टमेंट है, तो क्या तेरे बाप की गाड़ी है क्या? अच्छा चलो बैठो, सहन कर लो, नेक्स्ट स्टेशन में उतर जाएगा। वो सहन करना होता है, सहन करना नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा हम सहन नहीं करते हैं, हम सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। आज यदि सभी धर्मों को स्वीकार करते तो वो 9/11 2001 का नहीं होता, आज ये टेररिज्म नहीं होता, ये सब प्रॉब्लम नहीं होते। स्वामी विवेकानंद ने हमारे देश की, हमारे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान दे दिया है। पर हम लोग ये वैश्विक प्रतिभा, स्वामी विवेकानंद द यूनिवर्सल लीडर, आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन आ गया, इकोनॉमिक फ्रंट में आ गया, बट वेयर इज द ग्लोबल सिविलाइजेशन फॉर विच वी नीड ए ग्लोबल लीडर, एंड दैट ग्लोबल लीडर इज स्वामी विवेकानंद, who is acceptable to all the people of all the world, irrespective of caste, creed, color, religion. He had Muslim friends, he had Christian friends, he had Christian admirers, Muslim admirers, Hindu admirers. उनके एक एडमायरर थे मोहम्मद सरफराज हुसैन नैनीताल के। उनको लेटर में लिखा था कि व्हाट वी वांट इन आवर कंट्री इज इन इस्लामिक बॉडी विथ वेदांतिक ब्रेन। वो मोहम्मद सरफराज हुसैन बाद में जाकर स्वामी मोहम्मदानंद बने और प्रबुद्ध भारत में आर्टिकल भी लिखे थे। स्वामी मोहम्मदानंद, सरफराज हुसैन और क्रिश्चियन फ्रेंड मिस मैकलाउड, स्वामी विवेकानंद की कितनी बड़ी प्रशंसिका थी। और मिस मार्गरेट नोबल, उसको तो स्वामी विवेकानंद यहां पर लाए थे भारतीय नारी के शिक्षा के लिए। बाद में उसका नाम दिया निवेदिता, क्योंकि उसने सारा जीवन निवेदित कर दिया भारत की नारी को नारी जागृति के लिए और नारी शिक्षा के लिए। So Swami Vivekananda is the only universal personality, the global personality which can bring in, usher in a global civilization, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा सभी धर्म समान रूप से महान है, सभी देश समान रूप से महान है। आज भारत यदि कहता है कि स्वामी विवेकानंद हमारा है, तो अमेरिका कहता है व्हाट डू यू से? तुम तो भारत, स्वामी विवेकानंद जब भारत में घूमते थे तो रोटी का टुकड़ा भी नहीं देते थे। हमने अमेरिका ने स्वामी विवेकानंद को महान बनाया है, अमेरिका कहता है। और अमेरिका ने एक लिस्ट बनाया, द 100 ग्रेट नेशनल बिल्डर्स ऑफ अमेरिका, उसमें एक नाम है स्वामी विवेकानंद, अमेरिका का। अमेरिका से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, एलेनर स्टार्क, उस किताब का नाम है द गिफ्ट अनओपन्ड। उन्होंने कहा कि एक गिफ्ट हमको मिली, पर अभी तक हमने उस गिफ्ट को अभी तक खोला भी नहीं है। कौन सी गिफ्ट अनओपन्ड? उन्होंने कहा उस पुस्तक में, स्वामी कोलंबस discovered the soil of America, but Vivekananda discovered the soul of America. और उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद ने कि अमेरिका के लोग जब प्यासे थे, भूखे थे, अपने आप को पापी समझते थे, तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांत का अमृत हम लोग को पिलाया, पर वो गिफ्ट हम लोग भूल गए हैं। आज यदि अमेरिका फिर से स्वामी विवेकानंद के संदेश को स्वीकार कर लेता है, आज भारत फिर से स्वामी विवेकानंद के संदेश को स्वीकार कर लेता है, आज विश्व के सभी देश यदि स्वामी विवेकानंद के वैश्विक संदेश को स्वीकार कर लेते हैं, वेदांत के संदेश को स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें सभी धर्म, सभी सत्यों के सभी एक ही परम सत्य तरफ ले जाते हैं, इस प्रकार की घोषणा है, उस ग्लोबल सिविलाइजेशन को स्वीकार करते हैं, तब ग्लोबल पीस आएगा। इफ वी वांट टू हैव ग्लोबल पीस, वी मस्ट हैव ग्लोबल सिविलाइजेशन, एंड दैट विल कम थ्रू द ग्लोबल लीडर लाइक स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद आज हमको चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने यही बात कही थी। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म सभा में गए, उस समय भारत को बड़ी खराब नजर से देखा जाता था। गुलाम देश तो था ही, अरे मदारियों का देश है, अंधविश्वासों का देश है, धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। वहां की स्कूलों में पढ़ाया जाता था बच्चों को, अरे वो देश तो ऐसा है ना कि वहां की स्त्रियां अपने नवजात शिशु को डाल देती है नदी में ताकि मगर उसको खा जाए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जब लेक्चर देने गए डिट्रॉइट में बाद में, तो एक महिला खड़ी हो गई, स्वामी इज इट नॉट ट्रू दैट इन योर कंट्री योर मदर्स थ्रो अवे देयर चिल्ड्रन इनटू द रिवर्स टू बी ईटन अवे बाय द क्रोकोडाइल्स?
स्वामी जी तो हाजिर जवाबी थे। स्वामी जी ने कहा, तुरंत कहा, यस मैडम, दैट इज वेरी ट्रू। यू नो, माई मदर ऑल्सो थ्रू मी इन टू द गेंजेस टू बी ईटन बाय द क्रोकोडाइल, बट यू नो आई वॉज सो फैट दैट द क्रोकोडाइल कुड नॉट ईट मी, सो आई एम हियर टू स्पीक बिफोर यू। इस प्रकार से स्वामी जी को अकेले हाथ सारे अमेरिका में सामना करना पड़ा था। कई क्रिश्चियन उनके फ्रेंड बन गए, उनके एडमायर बन गए। कुछ क्रिश्चियन जो पादरी थे उनके शत्रु बन गए। क्यों? उनकी इनकम 1/10 हो गई, क्योंकि वहां पर जाके बोलते थे सेंड द बाइबल देयर, सेंड द बाइबल देयर। गीत लगाते थे कि अरे वो देश में धर्म नाम की वस्तु नहीं है, इसलिए वहां बाइबल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो बेचारे लोग धर्म के बिना रह जाएंगे। इसलिए सब पैसा इकट्ठा करते हैं। स्वामी विवेकानंद जो शिकागो धर्म सभा में हिंदू धर्म के बारे में संक्षिप्त अपना भाषण दिया, सारे विश्व प्रसिद्ध हो गए एक दिन में। और न्यूयॉर्क हेराल्ड, उस समय का सबसे बढ़िया समाचार पत्र, सबसे विश्व प्रसिद्ध समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने लिखा, द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इज स्वामी विवेकानंद। कि सारे विश्व से इतने सारे महान धर्म प्रेमी आए हैं, उसमें सबसे बड़े महान है स्वामी विवेकानंद। और दूसरा सेंटेंस और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आफ्टर लिसनिंग टू हिम वी फील हाउ फुलिश इन आवर पार्ट टू सेंड मिशनरीज टू इंडिया, देयर रिलीजन इज सो ग्रेट, रादर वी शुड इनवाइट मिशनरीज फ्रॉम इंडिया। पूरा तख्ता पलट गया। स्वामी विवेकानंद ने जाकर के विश्व विजय प्राप्त किया, सारे विश्व पर विजय प्राप्त की। सारे विश्व में पता लग गया कि सबसे महान सभ्यता, सबसे महान संस्कृति, सबसे प्राचीन संस्कृति, हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति है। अरे हम तो अभी लोग 2000 साल पहले हमारे क्राइस्ट हुए, पर इन्होंने तो हजारों वर्ष पूर्व इतनी सारी महान संस्कृति थी। सारा तख्ता पलटा दिया। स्वामी विवेकानंद ने विश्व विजय प्राप्त किया। 1897 में 4 वर्षों तक वेदांत का अमृत पिला करके जब वापस लौटे, उनका अद्भुत स्वागत हुआ सारे देश में। कोलंबो में, उस समय कोलंबो भारतवर्ष में था, कोलंबो में उन्होंने पहला पैर रखा। कोलंबो से लेकर रामेश्वरम, फिर चेन्नई, मद्रास, वहां से कलकत्ता होते हुए अल्मोड़ा उत्तराखंड तक गए, और जहां जहां गए उनका भव्य स्वागत हुआ। उस स्वागत के उत्तर में उन्होंने जो भाषण दी, अग्निमय भाषण, वेरी पावरफुल स्पीचेस, इतनी पावरफुल स्पीचेस कि उन स्पीचेस को बाद में उसका पुस्तक का नाम दिया लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। और इसी पुस्तक को नए फॉर्म में भी दिया गया है, जिसके बारे में बच्ची ने बताया था दोपहर को, माई इंडिया द इंडिया इटर्नल। उसमें से कुछ अंश दिए गए हैं, उस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए सबको। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक पढ़ने के बाद एक लड़का था, 9वीं कक्षा में पढ़ता था, कटक में था। उसने जब पढ़ा किताब तो उसने निश्चय कर लिया, आई विल सेक्रीफाइस माई होल लाइफ फॉर द सेक ऑफ द नेशन। मैं अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दूंगा। उसका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे देश के जितने बड़े बड़े महान नेता हुए, जितने देशभक्त हुए, जितने क्रांतिवीर हुए, ये सबके प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि जब तक स्वामी विवेकानंद की किताबों पर प्रतिबंध नहीं रखा जाएगा, तब तक ये क्रांतिकारियों को हम लोग संभाल नहीं सकेंगे। ये आजकल नया रिसर्च करके देखा गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ये नोट दिया था, क्योंकि हर एक क्रांतिकारी के यहां जब जाते थे तब कभी बॉम्ब मिलते थे, कभी नहीं मिलते, पर 2 बॉम्ब अवश्य मिलते थे। एक भगवत गीता की किताब और एक स्वामी विवेकानंद की किताब। उसको बॉम्ब माना जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको बॉम्ब मानती। और ऐसे पावरफुल बॉम्ब थे, थॉट बॉम्ब, इतने सारे विचारों के शक्तिशाली। हमारे देश के जितने महान नेता, सबके प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। महात्मा गांधी जब बेलूर मठ गए 6 फरवरी 1921, तो वहां पर सभी ने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी जी का मैं भाषण देने नहीं आया, मैं तो उस महामानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूं। पर मैं एक ही बात यहां पर कहूंगा, जितने युवक लोग आए हैं उनको एक ही बात कहूंगा, जब इस महान स्थान पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, यहां की कुछ प्रेरणा लेकर के जाना। और फिर उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ा है, और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं हमारे समय में शायद ही युवक ऐसा होगा, कोई युवक होगा जो स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों से प्रभावित न हुआ होगा। और वर्तमान पीढ़ी में भी यदि वर्तमान पीढ़ी के युवक लोग यदि स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ेंगे तो उनमें देशभक्ति आ जाएगी। मिस मैक्लाउड ने एक बार पूछा स्वामी जी को, स्वामी जी हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकती हूं? तब स्वामी जी ने जो उत्तर दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर, जिसकी आज हमें बहुत आवश्यकता है उस उत्तर की। हम भी यदि आज स्वामी विवेकानंद होते, अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का बर्थडे गया परसों, तो स्वामी विवेकानंद का बर्थडे गया, यदि मान लो आज स्वामी विवेकानंद आ जाएं और हम यदि स्वामी जी को पूछे स्वामी जी हाउ कैन आई सर्व यू,
हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपको महान चाहते, हम चाहते, आप तो महान हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो स्वामी जी क्या उत्तर देंगे? मुझे लगता वही उत्तर देंगे जो मिस मैकलाउड को दिया था। मिस मैकलाउड ने पूछा, स्वामी जी हाउ कैन आई सर्व यू? तो स्वामी जी ने एक ही बात कही, लव इंडिया, भारत को प्रेम करो। बस एक ही, बस स्वामी जी ये चाहते और कुछ नहीं चाहते। एक बार यदि भारतवर्ष के प्रति प्रेम आ गया, हमारे देश के प्रति प्रेम आ गया, तो सब कुछ हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की उन किताबों को पढ़ करके देशभक्तों में देशभक्ति आई, और स्वामी विवेकानंद का प्रथम स्वप्न उन्होंने, और स्वामी जी ने यह मंत्र सब जगह दिया था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। और सारा देश जाग गया, और उस समय के युवकों ने स्वामी विवेकानंद के प्रथम स्वप्न को सिद्ध किया। कौन सा स्वप्न था? स्वामी जी ने कहा था, इंडिया शैल बी इंडिपेंडेंट विद इन 50 ईयर्स। 1897 में, वे तो भविष्यवेता नहीं थे परंतु युग दृष्टा थे। 1897 में उन्होंने कहा 50 वर्ष के भीतर भारत स्वाधीन होगा। उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी। गांधी जी तो 1915 में साउथ अफ्रीका से बाद में आए, बाद में उन्होंने स्वराज की कल्पना की, पर उस समय तक किसी ने स्वराज की कल्पना तक नहीं की थी। तब स्वामी विवेकानंद 1897 में कहा 50 वर्षों के अंदर भारत स्वाधीन होगा, और ठीक 50 साल बाद 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। स्वामी विवेकानंद का स्वप्न सिद्ध हुआ। परंतु स्वामी जी, स्वाधीनता के बाद क्या हुआ? स्वाधीनता के बाद हमने स्वामी विवेकानंद के संदेश को भुला दिया और सब अपना पॉकेट भरने में लग गए। मैं, मेरी बीबी, मेरा बच्चा, मेरा मकान, देश जय फाड़ में। मिनिस्टर से लेकर के नीचे तक ये जो भ्रष्टाचार की बात सुनी अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने सर्वे किया, 10 महान देश हैं जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। उन 10 महान देशों में एक देश का नाम है मेरा भारत महान। इतना, इसीलिए स्वामी विवेकानंद क्या ऐसा चाहते थे? स्वामी जी ने क्या कहा था? अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक रुको मत। हम लोगों ने क्या किया? उठे, जागे, स्वाधीनता प्राप्त किया, फिर सो गए। स्वामी जी ने नहीं कहा था उठो, जागो और सो जाओ, अराइज अवेक एंड गो टू स्लीप। स्वामी जी का अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज। एंड व्हाट वाज द गोल ऑफ द नेशन दैट ही पुट फॉरवर्ड? व्हाट वाज द गोल? गोल वाज नॉट ओनली इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। उन्होंने मद्रास के अपने भाषण में कहा था, इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल पावर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, एटम बम के द्वारा नहीं। व्हाट स्वामी जी मेंट देयर बाय कि सारे विश्व को अभी वेदांत के अमृत की आवश्यकता है, वैश्विक सभ्यता की आवश्यकता है, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। कंज्यूमरिज्म, एफ्लुएंजा, उससे सब लोग मर रहे हैं। कंज्यूमरिज्म के कारण देखो अभी इकोनॉमिक मेल्टडाउन के कारण कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मानसिक रूप से पागल हो रहे हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 54% ऑफ द यूथ इन अमेरिका, जापान एंड स्वीडन आर नॉट मीटिंग नेचुरल डेथ, दे आर डाइंग आउट ऑफ सुसाइड कर रहे हैं, सिजोफ्रेनिया हो रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ कंज्यूमरिज्म, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर। स्वामी जी ने कहा वी हैव टू सेव द होल वर्ल्ड, बट फर्स्ट वी हैव टू सेव आवर ओन यूथ। अभी तो हमारे यूथ ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक कल्चर में लगे हैं। पहले उनको बचाना पड़ेगा, फिर वेस्टर्न यूथ को बचाना पड़ेगा। बट वी हैव टू सेव द होल वर्ल्ड बाय अवर इंडियन स्पिरिचुअल कल्चर। ग्रेजुअली इट इज हैपनिंग। 4 अगस्त 2003 न्यूयॉर्क से टाइम मैगजीन निकल रहा है, टाइम मैगजीन प्रकाशित होता है। और टाइम मैगजीन में फ्रंट कवर में फोटो दिया था एक हॉलीवुड एक्ट्रेस का मेडिटेटिंग, और इनसेट में एक कवर स्टोरी का नाम था जस्ट से ओम। उसमें लिखा था 10 millions of Americans are having regular meditation now. You cannot avoid meditation in America. Boardrooms, classrooms, prison houses, hospitals, schools, colleges, aeroplanes, airports, railway platforms, everywhere there is meditation chamber. Even in Europe also, when I went to Europe in 2004, when my return flight was from Switzerland, from Zurich to Bombay, at Zurich airport, I saw with my own eyes a meditation chamber, beautiful meditation chamber at the beautiful airport. Even at Zurich, सभी जगह meditation chamber आ रहे हैं. And Americans are going gaga over yoga. 75% of the fitness clubs in America are having regular courses on yoga and meditation. So gradually our spiritual culture is going. But still we have to go a long way. First we have to protect our own children, our own youth, and then we have to take that
Indian spiritual culture to the whole world, particularly the spiritual culture which speaks about harmony of religions, which speaks about mental peace, which speaks about the spiritual culture, then only the whole world will be at peace. तो सारे विश्व को बचाने के लिए भारतीय संस्कृति द्वारा विजय प्राप्त करना पड़ेगा, और उसके पहले क्या करना पड़ेगा? We have to become a developed country, isn't it? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा इंडिया 2020 विजन ऑफ द न्यू मिलेनियम। तो 2020 तक में हमको भारत को विकसित भारत बनाना पड़ेगा, तब तो लोग बोलेंगे हाँ आपको हम विश्व गुरु के रूप में लेते हैं। तो विकसित भारत बनाना पड़ेगा, तो वो कैसे